So we have started the concept of skin depth. ठीक है जी. And if amplitude is decaying exponentially, so skin depth किसको define करेंगे? It is the point at which, say this point, the amplitude reduces to 1 by e of its original value at surface. ठीक है जी. So ये जो distance है x, this is x is equal to 0 here, and it increases at this side. So this distance, this much, is called skin depth, delta, denoted by delta, small delta. ठीक है जी. नाम से कुछ क्लियर हो रहा है? स्किन के, स्किन ऑफ द कंडक्टर, वो स्किन जिसमें आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज कर जाता है 1 by e of its original value. That is called skin of the conductor. पुअर कंडक्टर है तो पेनिट्रेट करेगा पूरा डीपली, एंड इफ इट इज अ गुड कंडक्टर और परफेक्ट कंडक्टर तो ये सरफेस पे ही रहेगा. ठीक है. तो ये हमने बिगिनिंग में भी किया था. तो क्लियर है बच्चे? यस सर. तो ये आपको एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू है बच्चे. इसको अब रिलेट करना है हमें के माइनस वैल्यू के साथ. सो दिस डेल्टा is equal to 1 over k minus. It is defined as 1 over k minus. ठीक है जी. So just a minute. So you have the values of k minus for good conductor as well as bad conductor. What is the value of k minus for good and bad poor conductor? क्या वैल्यूज थी बता? k minus प्रीवियस पेज करना, बस एक मिनट हो गया सर. for good conductor we have k minus is equal to mu omega sigma by 2 square root. ठीक है. And for poor conductor its value is mu by epsilon into sigma by 2. 2. So this was the value. So delta is defined as 1 over k minus. ठीक है जी. So डेल्टा वो डिस्टेंस है जिसमें आपका एम्पलीट्यूड E0 जो है डिक्रीज कर जाता है E0 बाय E में. किस डिस्टेंस में? डेल्टा में. क्लियर है जी? यस सर. Just a minute. So we have this is the E vector and B vector. ठीक है जी. Which is decaying exponentially. This is the exponential decay. ठीक है जी. Now if we put a value of r such that r is equal to 1 over k minus, ठीक है, then our E0 prime decaying amplitude of E vector as well as B vector, it becomes 1 over E. So r is equal to 1 over k minus. If we substitute this value in E vector and B vector amplitude, we get E vector is equal to 1 by E at this r, as well as B vector at is equal to 1 by E of original value at this r. So this is defined as delta. ठीक है जी. So ये concept यहाँ से आया कि exponential decay कर रहा है. So कितना decay करे? जब भी exponential decay है, we have in previous units as well, we have discussed about characteristic time or logarithmic decrement. We have considered the time at which the amplitude reduces to 1 by E of its original value. ठीक है जी. So at a depth equal to 1 over k minus, the amplitude of electromagnetic wave remain 1 by E part of that value outside the medium. So अगर ये surface है, surface पे अगर ये E0 है, तो इतनी distance delta के अंदर ये E0 by E हो जाएगा. ठीक है. The amplitudes are spatially attenuated as r increases. Spatially means with respect to the space coordinate. Attenuated means it decreases exponentially as you are increasing the r value. ठीक है जी.
So this is called skin depth or also called penetration depth. Delta is equal to 1 by k minus, और k minus की वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे you will get value of delta is equal to, for good conductor it is square root of 2 by mu sigma omega, first one, and for poor conductor it is 2 by sigma epsilon by mu square root, inverse of k minus. ठीक है जी. अब यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा कि k प्लस और k माइनस में क्या डिफरेंस था. We have k is equal to k plus iota times k minus. This is forward wave, this is reflected or the wave which is traveling inside this conductor. So ये उसका wave number k minus. ठीक है. So now यहां से क्लियर हो रहा है आपसे कि डेल्टा जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है गुड कंडक्टर के लिए भी. अच्छा, स्किन डेप्थ कितनी होनी चाहिए बच्चे फॉर परफेक्ट कंडक्टर? What is the value of skin depth for perfect conductor? 0. It should be 0. ठीक है. But it also depends on frequency of incoming electromagnetic wave is equal to 2 pi nu 2 pi f. ये electromagnetic wave की frequency. ठीक है जी. Now it is clear that अगर हम गुड कंडक्टर की बात करें तो ये फ्रीक्वेंसी. ठीक है. Now skin depth is inversely proportional to square root of frequency. If your frequency is small, तब क्या होगा? डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? If your frequency is small, डिनोमिनेटर में टर्म ज्यादा हो जाएगी. It means आपका मटेरियल तो वही है. फॉर एग्जांपल आपने कॉपर उठा रखा है, ठीक है, गुड कंडक्टर है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी एक हाई फ्रीक्वेंसी वाली फॉल कर रही है, से एफ हाई, और दूसरी सेम सिचुएशन में एफ लो फ्रीक्वेंसी. तो यहां आपका डेल्टा जो है इट वेरीज विद हाई एज वेल एज लो फ्रीक्वेंसी. हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो स्किन डेप्थ कम हो जाएगी, ठीक है, और अगर ये लो फ्रीक्वेंसी हुई तो स्किन डेप्थ ज्यादा हो जाएगी, दो यू आर यूजिंग द सेम मटेरियल कॉपर. सो इससे हम क्या रिजल्ट कंक्लूड कर रहे हैं कि इट इज ए फंक्शन ऑफ स्किन डेप्थ इज अ फंक्शन ऑफ frequency as well. It means a conductor is good or bad, it also depends on the frequency of incoming wave in this situation. ठीक है जी. So typically value of delta for copper is 60 hertz. ठीक है. 60 hertz AC is ये frequency इसकी, ये है डेल्टा 8.6 mm, और यही अगर मैं इसको 1 गीगाहर्ट्ज कर दूं फ्रीक्वेंसी को, तो ये जो डेल्टा है आपका ये 67 माइक्रोमीटर हो जाएगा. पहले mm में था और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते ही ये माइक्रोमीटर में आ गया. ठीक है. सो स्किन डेप्थ परफेक्ट के लिए 0 है, बट फॉर एग्जांपल कॉपर के लिए ये इनकमिंग फ्रीक्वेंसी के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी के साथ भी चेंज कर रहा है. सो दिस इज द कांसेप्ट हियर. So therefore a direct current flows through whole volume of a conductor and an alternating current flows only on the surface of the conductor. So यहाँ से आपको ये concept clear हुआ होगा कि जो आपने +2 में भी पढ़ा था कि charge reside only on the surface of the conductor, that is alternating current. ठीक है, which is decaying exponentially, but direct current है वो सीधा penetrate कर जाएगा. ठीक है जी. So this is the concept of skin depth. It is an application of electromagnetic wave in conducting media. Clear है? ठीक है जी. Yes, sir. So यहाँ अगर डेल्टा की वैल्यू 1 by k माइनस है और गुड कंडक्टर है तो k माइनस और k प्लस बराबर होंगे. ठीक है, ये हमने किया था फॉर गुड कंडक्टर, दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है. सो मैं इसको इसके बराबर भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 1 by k प्लस फॉर गुड कंडक्टर. क्लियर है जी? Yes, sir. k प्लस की वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ? इट इज 2 pi by lambda. सो 2 pi by lambda. ठीक है, k प्लस इज इक्वल टू 2 pi by lambda. वेव नंबर रिलेटेड विद वेवलेंथ. 2 pi मीटर्स में कितनी वेवलेंथ आ रही है. ठीक है, lambda by 2 pi. So 2 pi क्या होगा approximately 2 into 3.146, which is approximately equal to 0.16 lambda. So for good conductor, ये जो हमने यहाँ पे यहाँ दिखाया था कि ये आपका गुड कंडक्टर है, अगर इस तरह की वेव फॉल कर रही है
तो अंदर एम्पलीट्यूड इस तरह डिके करेगा। तो मैंने तो यहाँ पे आपको काफी वेवलेंथ दिखा दी, बट इन एक्चुअल फॉर गुड कंडक्टर स्किन डेप्थ इज 0.16 लैम्डा, एक वेवलेंथ का 0.16% सिर्फ। सो उसको डिके करने में सिर्फ इतना सा ही टाइम लगेगा, एक वेव बनने भी नहीं देगा और उसका एम्पलीट्यूड डिके हो जाएगा फॉर गुड कंडक्टर। Whereas for bad conductor, you can have multiple wavelength inside the surface as well. Clear है जी? So concept of wavelength है ही नहीं good conductor में, inside the good conductor, because skin depth is 0.16 of lambda. ठीक है जी? So this is the unit of electromagnetic wave बजे. So we have started with basics of electromagnetic wave. Vector space क्या है, vector क्या है, scalar field क्या है, vector field क्या है, then three dimensional derivative, scalar product, vector product. Scalar product में हमारे पास gradient था, vector में हमारे पास divergence और curl था, उनके respective physical significances थे, ठीक है। देन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या था, डिफरेंट फील्ड को डिफरेंट नोटेशन, सोलेनॉइडल फील्ड, इरोटेशनल फील्ड, लेमुलर फील्ड, ठीक है। देन वी हैव डिराइव्ड मैक्सवेल्स फोर इक्वेशंस, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटोस्टैटिक, फैराडेज लॉ एंड एम्पियर्स लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटोस्टैटिक्स के बीच में रिलेशन, मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को जब हमने मॉडिफाई किया डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट में, कि मूविंग flowing current can produce magnetic field as well, and changing magnetic field can produce electric field as well. So ये हमने चार equations derive की after the modification of displacement current in ampere circuitous law. Equation of continuity find की, equation of continuity leads to conservation of charge because we have derived that del dot j is equal to minus curly rho by curly t. ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में से चार्ज आउटसाइड फ्लो कर रहा है, ओनली देन करंट इज फ्लोइंग इन द सरफेस। उसके बाद हमने अप्लाई किया ये चारों जो इक्वेशंस हमारे पास आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस, मैक्सवेल इक्वेशन भी बोलते हैं इनको। वी हैव अप्लाइड दीज इक्वेशंस टू फ्री स्पेस एंड कंडक्टिंग मीडिया। These are bigger articles. So in free space, we have we can treat three-dimensionally as well as single dimension as well. But for our convenience, we have used three-dimensional concept, and we have derived wave equation for E vector and B vector in free space. Then we have proved that electromagnetic wave travel with the speed of light. ठीक है जी? Then we have found the concept of characteristic impedance कितना होना चाहिए, and transverse nature of electromagnetic wave. These are the few subtopics of electromagnetic wave in free space. Then we have moved on to electromagnetic wave in conducting media. So in this, we have derived the wave equations for E vector and B vector. It is similar to damped equation. ठीक है? Characteristic time find किया. We have proved that how charge lies on the surface of the conductor only. Then we have proved that the amplitude of E vector and B vector, they are decaying exponentially inside a conductor. ठीक है, exponential decay है. Then we have found the concept of values. We found the values of K plus and K minus for good and poor conductor. Then we have derived the skin depth of a conductor, and we have found that skin depth is a function of frequency, inversely proportional to square root of frequency. ठीक है जी बच्चे, इस यूनिट में कोई डाउट है आपको किसी टॉपिक में तो पूछ सकते हो। सर हाँ नीश बोलो। सर हमने उस दिन के माइनस और के प्लस की वैल्यू निकाली थी ना, वो तो डिफरेंट है। बच्चे इट इज डिफरेंट फॉर पुअर कंडक्टर एंड इट इज सेम फॉर गुड कंडक्टर। ओके ठीक है जी। Yes, sir. So let us start the next unit because we have less time. Up to 26 we have to cover interference. So next unit is Sir, you are not audible.
हाँ we सर आ have गया। but we have two waves W and W2 constructive interference हो रही थी. We have another wave W3. We have if we try to superimpose, we see that zero intensity and maximum intensity they are falling on each other. ठीक है. So इस केस में आपके पास destructive interference आएगा. अब अगर मैं एक और wave consider कर लूं W1 prime, so ये है 0, ये है lambda, ये है 2 lambda. यहाँ पे भी मैं ये मार्क कर देता हूँ 0 lambda and 2 lambda. If my wave is starting from this point now, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं. Now if I try to interfere W1 plus W1 prime, अब क्या होगा? What is the situation now? सर कंस्ट्रक्टिव कह सकते हैं सर, आई गेस. So there is constructive interference, but phase difference अब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये lambda से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, 0 के corresponding phase 0 है ना, और ये है 2 pi. ठीक है, 0 to lambda 2 pi है, 0 to 2 pi के बीच, और ये pi by 2 का फेज. सो यहाँ एक कंप्लीट वेवलेंथ शिफ्ट कर गई. अगर मैं इसको आगे ड्रॉ करूं तो ये भी इसी तरह ट्रेवल करेगी 2 लैम्डा तक. ठीक है, सो इन दोनों के केस में भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा, बट फेज डिफरेंस है. ठीक है, सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड अबाउट द कांसेप्ट ऑफ फेज डिफरेंस. ठीक है जी. नेक्स्ट इज, हाँ जी बच्चे. सर एक बार ये फिर से बताना सर, ये समझ नहीं आया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे होगा. बच्चे ये वेव 0 से स्टार्ट हो रही है, ये वेव लैम्डा से स्टार्ट हो रही है. ठीक है, यहाँ इसके पास कोई वेव नहीं है, ये फॉरवर्ड ट्रेवल कर रही है, 0 से स्टार्ट होगी, ये आगे मैंने डैश लाइन बनाई है, ये लैम्डा से आगे 3 लैम्डा बाय 2 या 2 लैम्डा तक भी जा रही है. सो व्हेन दिस वेव, इफ यू ऐड दीज टू वेव्स, यू गेट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ठीक है, क्योंकि इसके क्रेस्ट पे ये रहा, इसके पास क्रेस्ट, इसके ट्रफ पे ये है ट्रफ. यहाँ जब आप ऐड करोगे तो देयर इज ओनली सिंगल वेव, यहाँ तो कोई वेव है ही नहीं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड, या तो ये वेव आप इसको बोलोगे कि इसके 0 पे ये वेव वैल्यू 2 लैम्डा पे आ रही थी, तो इट मींस देयर इज फेज डिफरेंस ऑफ 2 पाई. ठीक है जी. सो फेज डिफरेंस की सर W2 और W3 में सर ये डिस्ट्रक्टिव कैसे हो रहा है सर? और बच्चे एक इस कॉन्सेप्ट को जोड़ो. अगर आपका क्रेस्ट ट्रफ पे फॉल कर गया, या ट्रफ क्रेस्ट पे फॉल कर गई, देयर इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ठीक है, ये है डिस्ट्रक्टिव. इफ क्रेस्ट प्लस क्रेस्ट, ट्रफ प्लस ट्रफ, दिस इज कंस्ट्रक्टिव. ठीक है, यहां मैं आपको फेज डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वेव पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई आगे की तरफ W1 प्राइम में. ठीक है, so W1 and W1 prime, they will give you constructive interference, but the main thing is they have phase difference of 2 pi. So W1 prime is 2 pi times 2 pi phase difference times ahead of W1. ठीक है, so even multiple of lambda, ये आप ऐसा भी कह सकते हो कि इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस n lambda है. अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मालूम, so n lambda where n is even, 2 lambda 4 lambda, so इस तरह से. सर बट सर W2 और W3 सब परफेक्टली थोड़ी सा क्रेस्ट एंड ट्रफ पे फॉल कर रहे हैं. नहीं बच्चा, मैंने इसीलिए आपको ये सिचुएशन लिखी है ना, ये कंडीशन लिखी है. ठीक है, तो जब आपकी ये कंडीशन मेट हो रही है किसी भी वेव के केस में, so you will get destructive, otherwise you will get constructive. अब पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? टू इंटरफेयरिंग वेव्स विद सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड हैविंग पाथ डिफरेंस इक्वल टू 0 or even multiple of lambda by 2. So path difference delta S equal to 0 or even multiple of lambda by 2. N lambda by 2, n is even. इस केस में आपके पास क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. इवन है, n इवन है, यहाँ lambda by 2 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना. अगर यहाँ पे 2 लैम्डा है तो ये लैम्डा आ जाएगा. ये यहाँ n इक्वल टू 2 है, 4 है, n की वैल्यू क्या है? 2, 4, 6 सो ऑन. सो ये तो n लैम्डा के बराबर हो गया ना. ठीक है, सो ये अप्रोक्सीमेटली n लैम्डा, n की वैल्यू है 0, 1, 2, 3 सो ऑन. तो यहाँ आपको क्या फॉल होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ये कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का.
ठीक है जी. So if path difference is n lambda, then it is constructive interference, and otherwise you will have destructive interference. So phase की टर्म में भी बात कर ली, path difference की टर्म में भी बात कर ली. ठीक है. So start करते हैं मुझे यूनिट. Some few examples are colors of hummingbird, neck and feathers. These are due to interference. Peacock feathers, soap bubbles. These all are natural phenomena. These are because of interference. Now question arises, if you put two bulbs together in a room, what will happen? Do they interfere? Do they make pattern like we are getting in a peacock feather or soap bubbles? No, sir. What is the reason? But they are not coherent. कोहेरेंट सोर्स नहीं है ना. हाँ सर. What are coherent sources? सो जो सर सेम फेज में होते हैं सर. सर जो सेम फेज डिफरेंस की सर सर, इनका कांस्टेंट phase फेज difference डिफरेंस से या time पे सेम depend नहीं करता है। अच्छा, हाँ सर. मैं आपसे ना बच्चे नॉन टाइम वेरिएबल. सिंपल कॉन्सेप्ट पूछता हूँ. लाइट एमिट कैसे होती है? Sir, excitation of electrons. Yes. So we have atomic levels, है ना? So if these atom या electron they de-excite, this is excited state and this is ground state. If they jump to ground state by emitting the photons, ठीक है, gamma photons, h nu energy के साथ. So light is emitted, ठीक है जी. ये है आपके पास एक एटम की एग्जांपल. कितने एटम में कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हैं एक मॉलिक्यूल में या मटेरियल में? देयर आर n नंबर्स, एवोगाड्रो नंबर. सो n नंबर्स है ना. और एक्साइटेड स्टेट में किसी भी स्टेट में हो सकते हैं, कोई भी स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, कोई भी उनकी डायरेक्शन हो सकती है. सो इट मींस व्हेन दे डी एक्साइट दे कैन एमिट द गामा रे इन डिफरेंट डायरेक्शंस. ठीक है. अगर आप सेम मटेरियल विद सेम एक्साइटेशन एनर्जी, वही सेम मटेरियल जो मटेरियल 1 है, ये इसी सेम मटेरियल का आप एक दूसरा मटेरियल उठाते हो, दूसरा सैंपल उठाते हो. अब यहां से जो एक्साइटेड स्टेट में एटम है ग्राउंड स्टेट में जा रहे हैं बाय एमिटिंग फोटोन्स. ठीक है. ये जो फोटोन है और ये जो फोटोन है दे आर नॉट इन सेम फेज. सब कुछ सेम है, ग्राउंड स्टेट सेम है, एक्साइटेड स्टेट सेम है, मटेरियल सेम है. Even then they are not in same phase. That is why two independent sources, they cannot be in coherence with each other. Whatever the situation may be, two independent sources cannot be in coherence with each other. ठीक है. So अब ये दो बल्ब हैं, ये एक ही तरह की एग्जांपल है, टंगस्टन बल्ब है अगर, तो वो एनर्जी लाइट एमिट कर रहे हैं. ठीक है. दो इंडिपेंडेंट सोर्स हैं S1 एंड S2, बट इंडिपेंडेंट है, दे कैनॉट बी इन कोहेरेंट स्टेज. So जब आप इन दोनों को एक साथ रखोगे, they will give you general illumination. There will be not interference pattern. Destructive या constructive interference नहीं होगा. हाँ जी बच्चे पूछो. सर जैसे इसमें लिखा है कलर ऑफ हमिंग बर्ड नेक एंड फेदर पीकॉक फेदर, तो मतलब इनका रियल कलर कुछ और होता है, ये हमें सिर्फ रिफ्लेक्शन के कारण दिखते हैं, इंटरफेरेंस के कारण दिखते हैं? बच्चे आपको कोई भी चीज कलर दिखते कैसे हैं आपको? सर पर जैसे कोई चीज आपको Reflection से. ग्रीन दिख रही है या कोई रेड दिख रही है, वो कैसे दिखती है? Sir, सर वो तो इसलिए दिखती है ना सर, क्योंकि सरफेस की सब प्रॉपर्टी होती है, कुछ कलर्स एब्जॉर्ब करने की, कुछ कलर्स हाँ, रिफ्लेक्ट करने yes. की. So उसका कलर कुछ नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो कुछ पर्टिकुलर कलर को फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर रही है, कुछ को रिफ्लेक्ट कर देती है, इसलिए वो आपको ऐसा दिख रहे हैं. ठीक है. सो हो सकता है ये ह्यूमंस में हमें इस तरह की रिफ्लेक्शन मिल रही है. एनिमल्स अगर सेम चीज को देखें, जो आपको ग्रीन दिख रही है उनको किसी और कलर की दिखती हो, है ना. सो इट इज पॉसिबल. उनका खुद का कलर नहीं है, उनकी प्रॉपर्टीज है कि वो ऑब्जर्व कर रही हैं कुछ पर्टिकुलर वेवलेंथ को, कुछ को रिफ्लेक्ट कर रही हैं. सो अभी आपका कोहेरेंस, ये कोहेरेंट सोर्स क्लियर हो गया आपसे. इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट बी इन कोहेरेंस विद ईच अदर. और कोहेरेंट सोर्स होते क्या है? जिनमें सेम फेज हो, सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी हो. ठीक है. सो कंडीशन ऑफ इंटरफेरेंस पहले तो ये देख लेते हैं. द लाइट सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, पहली कंडीशन. अब कोहेरेंट का क्या मतलब है? दिस मींस दैट प्लेन वेव्स फ्रॉम सोर्सेज मस्ट मेंटेन ए कांस्टेंट फेज रिलेशन. आइदर जीरो फेज होना चाहिए या कांस्टेंट फेज होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, इफ टू वेव्स आर कंप्लीटली आउट ऑफ फेज विद फेज डिफरेंस ऑफ पाई, दिस फेज डिफरेंस मस्ट नॉट चेंज विद द टाइम. ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर टाइम t1 पे
उनका फेज डिफरेंस पाई था, किसी और टाइम t2 पे आप जाके देखो वो 2 पाई हो गया, किसी और टाइम t3 पे जाके देखो आप तो 3 lambda by 2 हो गया. So this should not be the case. If they are having out of phase phi is equal to pi, so they should maintain this phase throughout the time for coherence. If they are in phase, they should maintain their phase throughout the time. So first condition for interference. अच्छा, coherence की बात करते हैं. So there are two categories of coherence: temporal coherence and spatial coherence. ठीक है जी. So coherence between field at point at two different time. So आप यहां देखो मुझे, ये अगर पोजीशन है x y z, इस पे E वेक्टर किसी पर्टिकुलर टाइम t1 पे, और यही E वेक्टर किसी पर्टिकुलर टाइम t2 पे, सेम पॉइंट पे, x y z सेम है यहाँ पे. इफ फेज डिफरेंस इज कांस्टेंट, इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहे विद द टाइम, ठीक है, विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड टेम्पोरल कोहेरेंस. पॉइंट सेम है, स्पेस कोऑर्डिनेट का पॉइंट सेम है, आप टाइम चेंज कर रहे हो, विद टाइम दे शुड मेंटेन द फेज, देन इट इज कॉल्ड टेम्पोरल कोहेरेंस. ठीक है जी. टेम्पोरल कोहेरेंस रिलेटेड विद द मोनोक्रोमेटिसिटी, ये जब लेजर का यूनिट करेंगे हम तब उसमें डिटेल में करेंगे. एंड स्पेशियल कोहेरेंस रिलेटेड टू डाइवर्जेंस ऑफ द बीम. सो स्पेशियल कोहेरेंस में क्या है, व्हेन वेव्स एट डिफरेंट पॉइंट. सो अब यहाँ पे क्या है, x1 y1 z1 एक पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट है x2 y2 z2. So two different space coordinates, that is why it is called spatial coherence. So when waves at different points in space preserve constant phase over a time t. So ये भी आपने किसी particular time t पे देखा, ये भी उसी time t पे देखा. अगर इन दोनों के बीच में जो E वेक्टर है, इन दोनों के बीच में ये मेंटेन कर रहा है सेम फेज, then it is called spatial coherence. So there are two सर ये categories. यंग्स डबल स्लिट में भी था ना? हाँ बजे, ये हर जगह कॉन्सेप्ट यूज होता है, लेजर में भी यूज होगा. ओके सर, तो हाँ अनीश बोलो. सर ये टेम्पोरल में लास्ट लाइन टेल हाउ मोनोक्रोमैटिक सोर्सेज, इसका क्या मतलब है? कौन सा है ये टेम्पोरल में लास्ट लाइन. बच्चे, मैंने आपको ये बताया कि टेम्पोरल कोहेरेंस इज रिलेटेड विद मोनोक्रोमेटिसिटी ऑफ लाइट. मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ, एंड टाइम इज रिलेटेड विद द फ्रीक्वेंसी. ये आपको यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट है बच्चे, लेजर वाले यूनिट में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रूव करेंगे हाउ टेम्पोरल कोहेरेंस इज रिलेटेड विद मोनोक्रोमेटिसिटी एंड हाउ स्पेशियल कोहेरेंस इज रिलेटेड विद डाइवर्जेंस ऑफ बीम. ये जो आपने एक्सपेरिमेंट किया था लैब में, डाइवर्जेंस ऑफ बीम वाला, लेजर बीम, ये उसके साथ रिलेटेड है. सर अगर हम सिंगल सोर्स को दो में स्प्लिट कर दे तो क्या कहेंगे? सिंगल सोर्स को दो में स्प्लिट करेंगे, अगर दोनों में से जो भी कंडीशन, कोहेरेंट तो वो रहेंगे, ठीक है. हाँ सर कोहेरेंट, बट coherence- मैं इसको टेम्पोरल कहूंगा कि स्पेशल कहूंगा? अब वो आपके सोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस कैटेगरी का है. विद द टाइम, अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे दो कोऑर्डिनेट के बीच में, ठीक है, सपोज आपकी ये बीम जा रही है, लेजर बीम फॉर एग्जांपल, ये पॉइंट 1 है स्पेस का और ये पॉइंट P2 है. किसी पर्टिकुलर टाइम पे दोनों के बीच में सेम फेज है, आगे जाके देखो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों के बीच में सेम फेज है, ठीक है, इट मींस ये स्पेशल कोहेरेंस है. अब फेज सेम है, यहां ध्यान से देखना, बीम डाइवर्ज करती है तो इस तरह जाती हुई बीम इस तरह फैल जाती है, ठीक है, जैसे ही फॉरवर्ड जाती है. बट अगर ये यहाँ पे जाके उनका फेज डिफरेंस कुछ और हो जाएगा, P1 और P2, है ना. बट अगर वो फेज डिफरेंस सेम रह रहा है, इट मींस ये पॉइंट भी उसी डायरेक्शन में है, ये भी उसी डायरेक्शन में है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों ये एक पैरेलल लाइन के बीच में है, ठीक है, और यहाँ जो है ये फैल गया, डाइवर्ज कर गई बीम. सो दैट इज व्हाई स्पेशियल कोहेरेंस इज रिलेटेड टू डाइवर्जेंस ऑफ बीम. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे. ओके. सो टेम्पोरल कोहेरेंस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंगल बीम ऑफ लाइट. आपने यहाँ पे एक सिंगल बीम ली बट डिफरेंट टाइम पे लिया, ये दो डिफरेंट बीम थी. Whereas spatial coherence is a relationship between two separate beams of light. ठीक है, so this is the concept of coherence. अब condition for interference ये थी, पहली तो हमने ये कर ली coherence वाली. दूसरी है light must be monochromatic, सिंगल वेवलेंथ की होनी चाहिए. अगर मल्टीपल वेवलेंथ हुई तो वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का मीनिंग नहीं रह जाएगा, जनरल इल्यूमिनेशन हो जाएगी. सो एंड थर्ड वन इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन शुड अप्लाई. ठीक है जी. तो y1 प्लस y2 दो वेव्स का एम्पलीट्यूड जब आप ऐड कर रहे हो तो सिंपली ऐड होने चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करना चाहिए. देन इज स्टोक्स लॉ.
अच्छा, सर इसको एक करने से सेकंड दिखाना सर प्रीवियस लेवल सर चेंज कर। ठीक है। हाँ जी सर। इसको करने से पहले बच्चे, स्टोक्स लॉ करने से पहले हम अब ये करते हैं कि कोरेंट सोर्स हम बना कैसे सकते हैं। दो इंडिपेंडेंट सोर्स तो आपके कोरेंट हो नहीं सकते। इफ यू हैव टू सोर्स S1 और S2, दे कैन नॉट बी कोरेंट। तो कोरेंट सोर्स बनाओगे कैसे? आपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, तो उसमें कोरेंट सोर्स कैसे बनाए थे आपने? सर एक लाइट सोर्स लेके दो सेम लेंथ के होल बना दिए, हाँ जिससे सेम वेवलेंथ निकलती है, स्लिट्स बोलते हैं उन्हें। ये आपका सोर्स है, सिंगल सोर्स, ठीक है। ये आगे एक मैंने स्लिट रख दी, ठीक है। स्लिट से किया था सर। उसके आगे मैंने दो स्लिट और रख दी, ठीक है। दिस इज से स्लिट 1, दिस इज स्लिट 2 एंड स्लिट 3। सो यहां से जब लाइट फॉल की, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गया, ठीक है। लाइट स्लिट 1 जरूरी है? आप सीधा भी डाल सकते हो, मैं आपको कॉन्सेप्ट जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसके लिए मुझे ये डालना पड़ा। सो ठीक है। सो यहाँ ये इस तरह से ब्रॉड होता जाएगा, ठीक है। और यहाँ आके ये दो, ये जो वेव फ्रंट था S1 से जो निकल रहा है वो ब्रेक होना शुरू हो गया, वो डिवाइड हो गया इस पैटर्न में, हाइजेंस प्रिंसिपल। ठीक है। सो नाउ यू हैव जनरेटेड two sources S1, S2 and S3 from S1, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है जी। ये कॉन्सेप्ट आपने +2 में पढ़ा था, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है। अब यहां जो हम इस यूनिट में करेंगे, दैट इज बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। सो यहां अगर हमारे पास ये स्लैब है फॉर एग्जांपल, और ई वेक्टर की बात करेंगे हम सिर्फ, क्योंकि मैंने अभी प्रूव किया था इससे पहले कि ई वेक्टर इज 377 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन बी वेक्टर, एंड मोर ओवर आवर आई इज सेंसिटिव टू ओनली ई वेक्टर। सो ये इंसिडेंट वेव है अगर आपकी विद सर्टेन एम्पलीट्यूड ए, ठीक है। ये आपका नॉर्मल है, दिस इज स्लैब ऑफ सम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, ये एयर है या कोई और मीडियम है, मैं सिंप्लिसिटी के लिए एयर रख देता हूँ, म्यू इज इक्वल टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1। सो ये नॉर्मल है, ठीक है। ये कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगा इसका, एंड सम पोर्शन विल बी ट्रांसमिटेड। कितना रिफ्लेक्ट होगा और कितना ट्रांसमिट होगा, इट डिपेंड्स ऑन द रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। सो इफ वी से कि रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फ्रॉम एयर टू एयर, एयर टू एयर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट है R, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा रिफ्लेक्टेड वेव का? दिस इज रिफ्लेक्टेड वेव, कितना एम्पलीट्यूड होगा बच्चे इसका? इफ ओरिजिनल वेव हैज एम्पलीट्यूड ऑफ A and reflection coefficient is R, its amplitude is A into R, ठीक है जी। ट्रांसमिटेड का क्या होगा कि एयर टू स्लैब या कोई मीडियम, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है T, सो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा A into T। ये यहाँ पे इस मीडियम से रिफ्लेक्ट होगा और कुछ ट्रांसमिट होगा, ठीक है। सो ये आपके पास रे 1 हो गया, ये रे 2 हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे S2 और S3 था ना, अब आपके पास एक ये रे होगी, एक ये रे होगी। These can act as two coherent sources, R1 and R2, ठीक है जी। And this is by division of amplitude, and in this unit we'll deal with the division of amplitude। इसमें बच्चे हम टॉपिक्स जो हैं करेंगे, थिन फिल्म, रिफ्लेक्शन फ्रॉम थिन फिल्म, ट्रांसमिशन फ्रॉम थिन फिल्म, वेज शेप फिल्म, थिन फिल्म, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, वेज शेप फिल्म, ये दोनों एक ही टॉपिक हैं। थिन फिल्म कैन बी पैरेलल एज वेल एज इंक्लाइंड, सो किसी पर्टिकुलर एंगल पे, ठीक है जी। और उसके बाद है न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट। So these topics will be covered
अंडर दिस यूनिट। ठीक है विजय? यस सर।